find and see this molecules, right? The drug likeness parameters, and how you can find out about a particular molecule that you can see in the, suppose there are many drugs in and around the globe, right? How do you know what drugs to follow? So there are few databases for that. Now, one of the databases is the drug bank that we discussed in the previous class. So taking hint from that, we can actually discuss and find out these molecules. Okay, and then we can actually allow us to know that how we can manipulate that molecule to develop a more potent molecule. Okay, so now we know how to use that, but the thing is that how do we develop a ligand? How do we prepare a ligand? How do we make a ligand? That's the main issue right now. Okay, so for that we have another software called ChemSketch. So today we're going to talk about this, discuss this ChemSketch application, so that it will lead to us, so we know how to develop and draw a molecule, because drawing a molecule is of utmost importance. Okay, so this is the particular software that we're going to discuss today, ChemSketch, and this is the freeware version. And there is another molecule that is there that is called ChemDraw, and the both of them work excellently fine. ChemSketch and ChemDraw both are exactly the same and how they operate. Okay, but yes, mostly people uses ChemDraw, but the thing is that ChemDraw has to be bought. Okay, it has to be bought, and you have to pay to buy it, whereas the ChemSketch is a free application that you can simply use, and you can perform all the important thing about this ChemSketch is that यहाँ पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, फ्री वर्जन में ही बहुत कुछ करना अलाउड है। तो ये एक इसकी ChemSketch की एक एक्स्ट्रा खासियत है, that we can actually use, and that gives us a more potential benefit. Okay, so first let's see. So this is the main screen. If you open up ChemSketch, if you install ChemSketch and you open up, this is the screen that you get. Okay, अच्छा, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाने के बाद एक एक प्रोग्राम दिखाने के बाद मैं थोड़ा टाइम दूंगा, तो उस समय मैं एक दो मिनट टाइम दूंगा, उस समय तुम वो अपने कंप्यूटर में करना। ओके, बट फर्स्ट टेक अ लुक इनटू माय स्क्रीन, ताकि मैं जब करूं तो पहले देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद तुम करना। नहीं तो क्या होता है, तुम देखोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे, फिर बार बार बोलोगे क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं करने के बाद मैं टाइम दूंगा कि यू देन अप्लाई इट ऑन योर ओन कंप्यूटर। ओके, okay, so first thing is that generally any molecule that you have seen, that generally they contain the cyclic compounds and all. Okay, so first see in this particular, in our right hand side, अपने दाहिने तरफ यहाँ पे देखना कि यहाँ पे कुछ क्या होता है, बहुत तरह की साइक्लिक कंपाउंड्स की लाइन लगी होती है। फॉर एग्जांपल दिस बेंजीन ग्रुप, so suppose I want to add a benzene group over there, so what can I do? I'm going to simply click the benzene group. See, if I hover my pointer to this group, it automatically says benzene. If I hover my pointer to this particular group, it says it is sulfino, it is cyclobutane. So typically you don't require to remember the name or the structure. If you remember it, obviously you have to remember it, because since you are doing the computer aided drug designing, it is important that you know about these structures by heart. And even though you don't know, because sometimes we are not from chemistry background, हमारा केमिस्ट्री बैकग्राउंड होता नहीं है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, तो केमिस्ट्री की उतनी नॉलेज तो होती नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पे पॉइंट को, माउस को ले जाना, तो तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या है। तो दिस द बेंजीन ग्रुप। सी, एज आई हैव सिलेक्टेड बेंजीन ग्रुप एंड एज आई ब्रिंग माय पॉइंटर टू दिस व्हाइट स्पेस, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि ये बेंजीन ग्रुप है, और कौन सा मॉलिक्यूल मैंने सिलेक्ट किया है वो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन दिखाएगा। देन सिंपली राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक द माउस, तो वो मॉलिक्यूल यहाँ पे चिपक जाएगी। So this is the molecule that I've added over here. Okay, now the thing is that now I can add another benzene group over here. और कहाँ ऐड कर सकते हैं? There are many places to add. I can add benzene group over to this particular bond over here, to this particular bond over here, to this particular bond over here, or we can add benzene group over to this particular edge. हम कोई एज पे लगा सकते हैं। अगर हम बॉन्ड पे लगाएंगे तो कैसे दिखने को मिलेगा? ऐसे दिखने को मिलेगा। देखो, मैं अगर पॉइंटर को बस
यहाँ पे ले गया बॉन्ड के ऊपर ले आऊं तो दिखाई देगा कि कैसे लगेगा। तो सपोज मैं आने के बाद मैं क्लिक कर दिया, सो सी द मॉलिक्यूल हैज बीन एडेड टू दिस पर्टिकुलर bond. This is the common bond that they share between two benzene group. Now suppose I want to add another benzene group over to this particular edge. तो यहाँ पे मैं माउस को बॉन्ड को सिलेक्ट ना करके मैं एज को सिलेक्ट करूंगा, एंड नाउ इफ आई क्लिक इट, देखो फिर से मेरा बेंजीन ग्रुप यहाँ पे बन गया। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. नाउ यू डू इट ऑन योर ओन, टेक अ मिनट टू डू इट। सर मेरा स्केच हो पाया कि नहीं वो पता नहीं है। स्क्रीन शेयर करूं मैं? हाँ स्क्रीन शेयर करूं मैं सर? नहीं, तुम बस ड्रॉ ऐड कर, तुम्हें दिख ही जाएगा यहाँ पे, ऐसे ऐड करोगे तो दिख ही जाएगा कि ये ऐड कर रहे हो। एक्चुअली सर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पाया, थोड़ा सा हेल्प करें सर आप। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है करो। देखिए तो बतलाएं आप कैसे क्या होगा। करो, शेयर कर दो। तुम उसको डाउनलोड किए थे ना? हाँ सर। डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक किए थे हाँ सर इंस्टॉलर किया को, था। उसके बाद क्या हुआ? देखिए सर ये है काइमेरा हाँ और ये है पाइमोल, दो तो हो गया। हाँ, तो कैम स्केच सेम इंस्टॉल कर लो। केम स्केच ये वहां नहीं, तुम सर्च पे जाके सिलेक्ट करो, सर्च पे जाके लिखो कैम स्केच, आ जाएगा। यहाँ पर। हाँ यहाँ पे कैम स्केच लिखो, आ जाएगा। यही तो आ गया, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हेलो, यस सर। यस, हाँ हाँ, यही तो तुम्हारा तो इंस्टॉल हो ही गया। ओके, बताया थी। इसको क्या करें, यस कर दे सर? हाँ, कौन इसको इसको हाँ यस कर दो, और बाकी सब काट दो, बस काट दो सबको। ठीक है, यही तो हो गया बस। ये इसमें करना है तो यहाँ। वहां पे नहीं, माउस को एज पे ले जाओ, हाँ, और फिर एक बॉन्ड पे ले जाओ, कोई बॉन्ड पे ले जाओ, बॉन्ड पे, बॉन्ड पे, हाँ हाँ, हो गया। ओके, यही तो बस हो रहा है। यस सर हो गया। ओके, तो अब तुम्हारा स्क्रीन ऑफ कर दो और मैं अपना शेयर कर देता हूँ। यस सर तुरंत। हाँ हाँ कट कर दूं ना सर इसको? हाँ, कट कर दूं ना इसको? स्क्रीन शेयर देखो, नीचे एक ऑप्शन है स्टॉप शेयरिंग। स्टॉप शेयरिंग, यस सर। तो ऐसे तब ऐड कर सकते हो। अब इसके वजह तुम सपोज साइक्लोपेंटेन ग्रुप का ऐड करना होगा, सपोज आई वांट टू ऐड साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन सिलेक्ट कर लिया, फिर उसी को मैं ऐड कर दिया। ऐसे ही जब जिसको तुम जो से ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद उसको लेके आना, तो ये बाद में एक एक करके ऐड होता जाता है। ठीक है, ऐड हो गया। नाउ द थिंग इज दैट बट दिस ऑल मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट? यस बट सर। समटाइम आई नीड टू, हो सकता है कि मुझे कार्बन की जगह ऑक्सीजन डालना पड़े, मुझे नाइट्रोजन डालना पड़े, तो कैसे करें? Then you see on the left hand side you have a particular table, and this contains the most widely used atoms, the most widely used atoms that you can see that are present in this particular site। यहाँ पे most widely used atoms यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि सपोज आई वांट टू ऐड अ नाइट्रोजन ग्रुप, आई वांट टू ऐड अ नाइट्रोजन, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं नाइट्रोजन को सिलेक्ट कर लिया, फिर यस सर। अब मैं जाके, अब नाइट्रोजन के तो मैं अभी मुझे एटम्स को रिप्लेस करना होगा, तो कहाँ रिप्लेस करूँ? सपोज मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो आई एम सिंपली क्लिक हेयर, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो गया। पर मैंने तो नाइट्रोजन ऐड किया था, पर यहाँ पे N प्लस क्यों ऐड हुई? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी पॉजिटिव में होती है सर। पॉजिटिव ही होती है। यहाँ पे ऐड किया तो देखो बस नाइट्रोजन ही दिखा रहा है, प्लस तो आई नहीं। तो तो 3 1 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ 4 ही बॉन्ड होगा ना सर?
तीन तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, इसीलिए एक प्लस ग्रुप आ गया. नाइट्रोजन वैलेंसी कैन रेंज फ्रॉम 3 to 5. ओके, और देखो यहाँ पे, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली डेवलप्ड टू मेंटेन द वैलेंसी ऑटोमेटिकली. लोग वैलेंसी में गलती करते हैं, सो दिस सॉफ्टवेयर इज ऑटोमेटिकली डेवलप्ड सो दैट इट कैन मेंटेन द वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ द एटम्स ऑटोमेटिकली. Now since in this particular case nitrogen has 3 bonds over there, only the nitrogen is added. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस चार्ज में है क्योंकि यहाँ पे इसकी 4 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज पे आ गया. अब यही बात सिमिलरली सपोज मुझे ऑक्सीजन ऐड करनी है कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली. अब देखो ये माउस को जब तुम पॉइंट आउट करोगे तो यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो CH दिखा रहा है, यहाँ पे CH2 दिखा रहा है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पे CH2 है, यू आर रिप्लेसिंग CH2. यहाँ पे CH है. ओके, since I'm clicking here and this replaced CH2 and placed an oxygen over there. Okay, so like that you can add any atom according to your choice. Suppose I want to add a phosphate group over here. I have selected phosphate, यहाँ पे लग दिया तो देखो phosphate group add हो गई. Like that I can change anything that I want. Okay, I can change anything that I actually want. But the thing is that यहाँ पे तो सारे एलिमेंट तो है नहीं, राइट? सारे एलिमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं सर, सारे तो नहीं है. सारे तो है नहीं. तो पहले तुम खुद ऐड करो, एक दो एटम ऐड कर लो. ओके सर. ओके, तो अब देखो अभी सारे एटम तो यहाँ पे है नहीं, तो अब बाकी के एटम कहाँ मिलेगी? देखो इसी टेबल के अगर हम एकदम ऊपर चले जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. So click it, and if you click it, you are going to get the entire periodic table. The periodic table contains the, what is periodic table? What is periodic table? Oh, sorry sir, it is not unmuted. Periodic table is the arrangement of element according to its valency. Yes, absolutely. According to their, not valency, atomic number. Yes sir, atomic number. Okay, accordingly यहाँ पे अरेंज किया जाता है. तो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी. पर ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो है, यहाँ पे अगर कोई तुम एलिमेंट को क्लिक करो, सपोज इफ आई एम क्लिकिंग दिस ऑक्सीजन ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी सारी प्रॉपर्टी भी दिखाती है. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? दिस आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ ड्रग वेयर ईच मॉलिक्यूल, ईच एटम, ईच एलिमेंट का केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर्स. तो इफ यू क्लिक ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में मास दिखाई देगा, वैलेंसी दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नॉट ओनली दैट, यू आल्सो गेट टू नो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज like the characters like colorless gas, the one who discovered oxygen, the name which came from it, and also the physical property like atomic radius 0.66, and the chemical property like electronegativity, ionization potential, electron affinity. Now why are these important? Electronegativity क्या है? What is electronegativity? Electronegativity is the tendency to obtain electron from an electropositive ion. देखो यहाँ पे एक चीज क्या है, तो ये यहाँ पे मुझे इसके बारे में क्यों चाहिए? क्योंकि देखो अगर हम जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल कैन एक्चुअली गो एंड बाइंड टू एनी प्लेस, राइट? जनरली वी वांट दिस मॉलिक्यूल टू बाइंड टू अ एक्टिव साइट. अब एक्टिव साइट में ऐसा हो सकता है कि सपोज देयर आर सम आर्जिनिन मॉलिक्यूल्स ओवर देयर. तो अगर तुम्हें मॉलिक्यूल को एक आर्जिनिन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट बाइंड करवाना है, तो आर्जिनिन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल. तो ऑफ कोर्स वी नो दैट पॉजिटिव and positive charge repels one another,
whereas positive and negative they attract one another, है ना? And Yes, sir. why it Yes, is sir. Yes, important? Because अगर कोई पॉजिटिव चार्ज्ड ग्रुप या पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन या पॉजिटिव चार्ज्ड ग्रूव में लाइगैंड को बाइंड करवाना चाहता हूं, तो मुझे ये याद रखना होगा कि मॉलिक्यूल को आई हैव टू प्लेस ऑक्सीजन और सम नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप ओवर देयर, because the more the negative, the more attracting they will be, the more higher affinity there will be. अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट रख दिया, सपोज आई एम गोइंग टू कीप अ पोटेशियम ओवर देयर, सो पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 0.82, so they are going to simply repel one another, there is not going to be a highly very high affinity interaction, नहीं होगी वहां पे, it is not going to be a high affinity interaction, rather it is going to be a very weak interaction. So that is why you require the knowledge of this particular thing. Now suppose the oxygen has 3.4 electronegativity, but what about fluorine? See, if I simply click fluorine, it becomes 3.98, more than 3.44. is because उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई. पर यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस में उतना चेंज नहीं हुआ, because atomic radius is 0.67 for fluorine and for oxygen is 0.66. And why it is important? Because the molecule has to go into a groove to bind to a protein. उसे कोई एक्टिव साइट में जाके बाइंड करना होगा ना. एवरी एक्टिव साइट, जैसे कि तुम्हारा जो दरवाजा है घर का, अगर तुम्हारा घर का दरवाजा का साइज तुम्हारे बॉडी साइज से छोटा हो, तो क्या तुम घर पे घुस पाओगे? नहीं सर. घुस नहीं पाओगे, तो तुम्हारे साइज के से बड़ा होना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मैं जिस जगह पे मैं इसको बाइंड करवाना चाहता हूँ, वहां का अगर ग्रूव अगर उसका साइज छोटा हो, तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे उससे भी छोटे कोई एटम को लाना होगा, ताकि वो उसके अंदर पहुंच के उसके साथ बाइंड कर सके. Yes, sir. So that is why the atomic radius is also very important. If I am keeping oxygen over there, because I am मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ग्रूव होगा, तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस पर्टिकुलर ग्रूव, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या घुस पाएगा? बिकॉज ऑक्सीजन 0.66, पर अगर इस यहाँ के ये ऑक्सीजन जहाँ पे बाइंड करेगा, उसका रेडियस अगर 0.5 हुआ, तो if the radius is 0.5, then obviously oxygen can't enter it. So what I have to do? Then I have to place some other molecules. Like see, यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम सोडियम ले लिया, तो उसका एटॉमिक रेडियस और बढ़ गया. फ्लोरीन क्लोरीन, देखो इसका एटॉमिक रेडियस और बढ़ता जा रहा है. So like that you can actually shuffle between the atoms to see कि कौन सा एटम का रेडियस कम है. सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एटम को डालो ताकि उसकी उसी रेडियस में वो घुस पाए, सेम, ताकि मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा ना हो जाए. बट ऑब्वियसली फॉर दिस थिंग्स यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट, एंड दिस इज व्हाई दीस आर ऑल इंपॉर्टेंट. Next you get to see the ionization potential, electron affinity, all these things for this particular atom. Next you get a NMR tab. What is NMR tab? You know what is NMR? Nuclear Magnetic resonance. magnetic resonance. Why it is important? Because जब तुम ये molecule synthesis करोगे, then you actually have to know that atom, तुम्हें तो ये molecule at the end synthesis करना होगा, right? Yes, sir. And while you synthesis the molecule, how are you going to know that you have added oxygen over there? यहीं पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? So for that you need to carry out NMR spectroscopy, because NMR spectroscopy give you the idea that yes, the oxygen or that any atom has actually been added to that particular group over there. और कैसे पता चलेगा? Because they give a peak at certain location. If you carry out proton NMR, then according to the proton you are going to get the protons. If you tag oxygen like that and you get to see that, you can see that yes, 13C NMR हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का पीक आ रहा है, ऑक्सीजन का पीक आ रहा है. So like that. Next you get to see the mass, कि ऑक्सीजन की बहुत तरह की मास होता है, because there are various isotopes of oxygen and various isotopes have various masses. So not only that, you also get to know the various things about this, the total chemical and physical property of all the molecules of all these atoms too, so that you can incorporate them into your system, into your molecule. So यहाँ अगर कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे कोई एटम यहाँ पे तुम्हें नहीं मिले, तो क्या हो सकता है? तुम पीरियोडिक टेबल को खोलो, यहाँ से कोई सपोज मुझे कैल्शियम ऐड करना हो, तो यहाँ पे मैं कैल्शियम तो है नहीं, तो मैं कैल्शियम सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया,
and then simply I'm going to select, यहाँ पे मैं calcium add कर दिया, so calcium has been added like that. Clear? Yes, sir, clear. Okay. Now the thing is that अब देखो यहाँ पे तो अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल के लिए कुछ चार्जेस भी ऐड करनी पड़ती है. एवरी मॉलिक्यूल, कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल के लिए चार्ज ऐड करनी होती है. सब मॉलिक्यूल नीड्स चार्ज. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ. इसमें पीरियोडिक टेबल का मुझे नाम मिल रहा है, उस समय मैं अपना कर रहा था, ऐड कर रहा था, तो मैं देख नहीं पाया कहाँ पर था पीरियोडिक टेबल का साइन. मैंने बोला ना पहले तुम मेरा देखो, उसके बाद मैं टाइम तो दे रहा हूँ ना करने के लिए. ये जब दिखा रहा हूँ ना तो पहले मेरा वाला देखो पहले ध्यान से, उसके बाद मैं तो टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद अपना करो. ठीक सर. देखो यहाँ पे एकदम ऊपर जाओ तो देखो एक पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स है. हाँ यस सर, दिख गया. ठीक है, ओके सर. ठीक है. ओके, पे अटेंशन टू मी नाउ. तो देखो इसके बाद क्या हो गया, यहाँ से अब देखो यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया. कभी कभी क्या होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को चार्ज ऐड करनी पड़ती है. सम मॉलिक्यूल रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ चार्जेस. सो हाउ टू ऐड चार्ज? फिर से सेम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे जाओ तो यहाँ पे तुम्हें देखोगा एक प्लस या माइनस साइन दिया हुआ है एंड इफ यू सी दैट इज इंक्रीमेंट चार्ज. So simply click that molecule. Suppose I want to add or incorporate charge to a particular group. तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, मैं इसको चार्ज करना चाहता हूँ. तो देखो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, देखो NH प्लस हो गया, बिकॉज आई एम एडिंग अ चार्ज ओवर देयर. एंड व्हाई अ हाइड्रोजन इज एडेड? बिकॉज हाइड्रोजन क्यों आ गया? क्योंकि ये प्रोटोनेटेड हो गया सर. बिकॉज प्रोटोन नहीं, जस्ट टू मेंटेन द वैलेंसी. Because I am not protonating it. I am not protonating it. I am simply adding a charge over there. But hydrogen is added so that only because यहाँ पे क्या है, वहाँ पे उसको वैलेंसी को मेंटेन करना है. वैलेंसी हैज टू बी मेंटेन. दैट्स व्हाई इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू ऐड अ proton over there, a plus charge, a hydrogen over there. So like that you can simply go on adding charges. तुम्हें जितनी भी चार्ज चाहिए, सपोज 1 चार्ज 2 चार्ज, फिर से क्लिक करो, उसके बाद ऐड नहीं होगी इसलिए बैक टू द स्क्वायर वन. तो लाइक दैट यू कैन सिंपली ऐड चार्ज ओवर देयर. अगर मुझे यहीं पे चार्ज ऐड करनी हो, देखो मैं pH प्लस हो गया, pH2 प्लस 2, pH3 प्लस 3, फिर से pH हो गया. तो देखो ऐसे करके में तुम कोई भी मॉलिक्यूल को चार्ज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो अगर पॉसिबल. ऐसा नहीं कि सब सारे मॉलिक्यूल के तुम कर सकते हो. कुछ मॉलिक्यूल वैलेंसी में तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, जैसे कि देखो ऑक्सीजन का तो फिर हो गया. अब देखो कैल्शियम का, यहाँ पे मैं प्लस चार्ज ऐड कर रहा हूँ, पर देखो माइनस चार्ज ऐड हो रही है. राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ प्लस चार्ज ओवर देयर एनीमोर. दैट इज व्हाई. जो पॉसिबल नहीं है वो जबरदस्ती हो नहीं सकती, बिकॉज केमिस्ट्री हैज टू मेंटेन इट्स वैलेंसी. बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी अगर मेंटेन नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल सिंथेसिस नहीं होगी. ओके, इसलिए द थिंग इज देयर. सिमिलरली अगर तुम इसे इसके नेगेट भी कर सकते हो. देखो एकदम कॉर्नर पे इंक्रीमेंट चार्ज के एकदम कॉर्नर पे आके तुम क्लिक करो तो तुम देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस, फिर रेडिकल, फ्री रेडिकल, ये सब भी आ जाते हैं. अगर मुझे चार्ज घटाना हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक डिक्रीमेंट चार्ज है माइनस, तो फिर उसको सिलेक्ट करके देखो मैं फिर से चार्ज को मैं घटा सकता हूँ. देखो यहाँ पे मैं पी को कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि तब प्लस चार्ज यहाँ पे तो माइनस चार्ज नहीं होगा. ऑक्सीजन के साथ भी नहीं होगा, नाइट्रोजन में भी नहीं होगा, कैल्शियम पे ही बस हो रहा है. ठीक है? तो these are the thing that you can actually change the charge. Okay, now do it on your own. Yes sir, done. ओके. तो ऐसे ऐसे क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हें मॉलिक्यूल तुम्हारी जरूरत पड़ती है, यू कैन चेंज योर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड यू कैन चेंज द चार्ज एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ द थिंग इज दैट Yes sir. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट यू नीड टू ऐड सम सर्टेन ग्रुप्स ओवर देयर. जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है, हो सकता है आई नीड टू ऐड अ हाइड्रोक्सी ग्रुप ओवर हियर. ओके, OH group over here. So how to do that? Yes. I can select oxygen and there are two ways to do that. How to? Suppose I have selected oxygen over there
एंड देन सिंपली आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, पर मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो, नॉट O माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्सिल Yes, ग्रुप sir. ऐड हो जाए। तो वो कैसे करें? वो करने की एक तरीका ऐसे है कि यहाँ पे जहां पे तुम ऐड करना चाहते हो वहां पे क्लिक करो, फिर थोड़ा सा होल्ड करके, लेफ्ट माउस को होल्ड करके खींच दो, तो देखो OH ऐड हो गया। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करो, होल्ड करके खींच दो, तो OH ऐड हो गया। सिमिलरली अगर मुझे NH3 ऐड करना हो तो क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज देखो मैं क्लिक करके खींच दिया तो मेरा NH2 ऐड हो गया, अमाइनो ग्रुप ऐड हो गया। But the problem is ऐसे करने से the bond length is going to change। bond length देखो चेंज हो गई। इतनी बड़ी बॉन्ड होती है? नहीं होती, नहीं सर, होती नहीं है, ठीक है। अब ये अचानक से OH और NH2 कैसे ऐड हो गया सर, कहाँ से, नहीं समझ पाया मैं। क्या कहा मैं, देखो नाइट्रोजन सिलेक्ट करो यहाँ से, फिर जहां हाँ पे तुम्हें हाँ ऐड करना हो उस एज को सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग कर हाँ। दो। ओ, अच्छा। ओके, और फिर OH के लिए O को सेलेक्ट करना सेम होगा। OH के लिए O को सिलेक्ट करो, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो यहाँ पे ऐड होती जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज if you do it like that, then the thing is that the bond length is not going to matter, the bond length is going to change, that you have no hand over there। तो हम क्या कर सकते हैं इसको लेके, अदर वे अराउंड इज टू सिलेक्ट अ कार्बन ग्रुप ओवर देयर, और यहाँ पे अगर तुम्हें कार्बन ऐड करना हो तो सिंपली क्लिक इट, देखो एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गई, राइट। यस Simply यस select सर। carbon and simply select the molecule or the edge where you want to add that methyl group over there। जैसे कि यहाँ पे करना हो तो मैं सिंपली वहां पे क्लिक किया तो देखो मिथाइल ग्रुप ऐड हो गई। यस सर। नाउ अब देखो इस मिथाइल जो ग्रुप ऐड हुई, दिस इज ऑटोमेटिकली एडेड बाय द सॉफ्टवेयर, तो इसकी बॉन्ड यस लेंथ सर। और मेरी बॉन्ड लेंथ क्या सेम है? नो सर। कंप्लीटली डिफरेंट है। अब क्या कर यस सकते सर। हैं उसके बाद हम, अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब नाउ आई कैन सिंपली क्लिक ऑन ऑक्सीजन और इस कार्बन को मैं चेंज कर दिया, तो दैट पर्टिकुलर थिंग बिकेम हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे मैं मिथाइल चेंज किया हूँ, अब मुझे अमाइनो ग्रुप ऐड करना है, तो सपोज मैं नाइट्रोजन सिलेक्ट किया, देन क्लिक ओवर देयर एंड सी इट इज चेंज टू अमाइनो ग्रुप। ओके, नाउ डू इट ऑन योर ओन। अमाइनो ग्रुप के लिए भी H ही सिलेक्ट करना पड़ेगा सर कि N? एन 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 एच तुम सिलेक्ट कैसे करोगे? एच एन तो अलग है ना। यस सर। यस सर, डन। पर द प्रॉब्लम इज, अब देखो यहाँ पे अगर इतना जो मैं ऐड किया, इसका तो बॉन्ड लेंथ तो चेंज हुआ नहीं, तो अब इसको चेंज करना होगा। तो देयर आर सम वेज टू डू दैट, वो मैं तुम्हें थोड़ा देर बाद में बताता हूँ कि कैसे चेंज करना होगा। बट यहाँ पे देखो फिर से, अब टेक अ लुक इनटू माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, यस सर। यहाँ पे देखो ऊपर में, ऊपर से थर्ड जो रो है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ चेन्स, ठीक है। सपोज सोचो कि मुझे कोई फैटी एसिड चेन बनानी है। ओके, सपोज आई यस सर। वांट टू ड्रॉ अ फैटी एसिड चेन, सो व्हाट कैन आई डू, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द कार्बन। यहाँ पे मैं कार्बन सिलेक्ट कर लिया। सपोज मुझे यस यहाँ पे चेन बनानी है, तो मैं क्या किया, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे कार्बन ऐड हो गया। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक किया तो फिर से एक ग्रुप ऐड हो गया, फिर से क्लिक किया, फिर से यहाँ इधर चला गया। अब फिर से ऐड किया तो इसके साथ ज्वाइन हो गया। तब सपोज मुझे ज्वाइन नहीं करनी है तो क्या करना होगा, तो मैं फिर से कार्बन को यहाँ से खींच के थोड़ा ड्रैग करूंगा, फिर ऐसे यस। ऐसे मैं चेन बनाता चलूंगा। देखो मैं ऐसे चेन बनाता चला गया। अब चेन अगर मैं ऐसा बनाऊं तो कार्बन चेन तो बन गया, पर ना तो बॉन्ड एंगल और ना ही बॉन्ड लेंथ, एकदम का मेरा गड़बड़ हो गया, है ना। हाँ बॉन्ड लेंथ बॉन्ड सर। एंगल कुछ भी ठीक ठाक से नहीं हुआ। सो हाउ टू ऐड चेन्स, तो यहाँ पे देखो ऊपर, अगर फिर से मेरे स्क्रीन पे ही देखो, यहाँ पे देखो एक ऊपर ड्रॉ चेन करके एक ऑप्शन है। सी सी माई माउस, यस सर। ड्रॉ चेन एक यस ऑप्शन सर। है। सो सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन सिंपली लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड,
लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड सिंपली ड्रैग द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो C10 C8 C6 दिखा रहा है, मतलब कि 6 कार्बन चेन जुड़ जाएगी, 9 कार्बन चेन जुड़ जाएंगी। अब जितनी Yes, देर sir. तक तुम उसे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करो उतनी लंबी चेन, कार्बन चेन और ये बनती जाएगी। सपोज आई Yes, वांट टू एड इट लाइक दैट। तो देखो 5 कार्बन चेन बन गई। अब इसकी और yes, इसकी sir. देखो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सब सही है, Same है. Yes, पर sir. यहाँ पे तो एकदम ठीक नहीं है। Uh-huh. ओके, तब Yes, sir. अगर कभी कभार अगर ऐसे कुछ हो भी गया, मेरा मॉलिक्यूल का सोचो कि कार्बन चेन ऐसा में बनाया है कि बॉन्ड लेंथ सब ठीक नहीं है, नहीं है, तो क्या करना होगा, मुझे मिटा के सब पहले से बनाना होगा। Yes, sir. ठीक है, तो पहले तुम Hmm. चेन बना लो, पहले तुम खुद चेन थोड़ा बना लो, फिर मैं दिखाता हूँ। मेरे में एक प्रॉब्लम हो गया सर, या कि जो चैन मैंने बनाया उसमें पहले मैं NH सब जगह ऐड किया था। अब वो चैन जो है केवल चैन नहीं बन के उसमें सब में NH ऐड हो रहा है। हाँ, बिकॉज तुमने तो एन सिलेक्ट करके ऐड किए हो। और N को मैं छोड़ना चाहता हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा वो। एन एन पे नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें जो मॉलिक्यूल तुम सिलेक्ट करना चाहते हो उसे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने देखो कार्बन सिलेक्ट किया हुआ है, तुम जो मॉलिक्यूल सिलेक्ट करके अच्छा, करोगे उस मॉलिक्यूल का होगा। अगर एन सिलेक्ट करके करोगे तो एन से होगा, कार्बन सिलेक्ट करके करोगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से वो छूट नहीं जाता है, सिलेक्ट करने के लिए दूसरे एटम को सिलेक्ट करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, हाँ, अब देखो ये मॉलिक्यूल, अब तो ये इसका साइज वाइज तो ये सब भी ठीक है, गड़बड़ हो गई। तो इसे अब मॉडिफाई कैसे करें, ठीक कैसे करें, तो ठीक करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे है, देखो टूल्स पे जाओ पहले गो टू टूल्स, हाँ, हाँ, टूल्स पे जाके देखो एक ऑप्शन है क्लीन स्ट्रक्चर, हाँ। उसे क्लिक करो। तो देखो क्लीन स्ट्रक्चर से क्या होगी, देखो अब देखो मेरी सारी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सब एकदम प्रॉपर हो गई। जो भी मैंने गलती बनाई थी वो सब एकदम से प्रॉपर हो गई। सो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली क्लीन्स द स्ट्रक्चर। जहां पे भी जो भी गड़बड़ी है, जो भी हाँ, गड़बड़ है, जहां पे जो प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। हाँ, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ वैलेंसी सबकी प्रॉब्लम को ठीक करके स्ट्रक्चर को ये क्लीन स्ट्रक्चर कर देती है। दिस ऑप्शन कॉल्ड क्लीन स्ट्रक्चर। ओके, and it यस is सर। always advised you that you always perform clean structure after you design a molecule, so that the bond length bond angle everything is perfect. Okay, यस सर। अब अगर मुझे कुछ मॉलिक्यूल को डिलीट करना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सिर्फ पास में एक ऑप्शन है लैसो ऑन ऑफ। तो यहाँ पे क्या करना होता है, तो मुझे अगर सिर्फ यही ऑप्शन को डिलीट करनी है तो देखो सिलेक्ट करो और डिलीट करो, इसे फिर से ऐसे क्लिक कर लो, स्क्वायर यस सर। स्क्वायर पे रखो, और फिर जिसे जितना भी सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे इतना इतना पार्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया और डिलीट किया, तो देखो डिलीट हो गई। ठीक है, यस सर। यस सर। अब और एक बात है कि कभी कभार हमें होती है कि डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे देखो सपोज आई डोंट वांट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, तो क्या करना होगा, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कार्बन ओवर देयर, यहाँ से कार्बन सिलेक्ट किया, फिर मैं उस बॉन्ड के यस पास सर। गया, फिर देखो बॉन्ड हाईलाइट हो गई, देन सिंपली क्लिक इट, तो देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गई। देन अगेन इफ आई अगेन क्लिक इट, सिंगल बॉन्ड हो गई। यहाँ पे देखो एक सिंगल बॉन्ड है, क्लिक किया डबल बॉन्ड हो गई, फिर से क्लिक किया ट्रिपल बॉन्ड हो गई। तो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो चेंज द बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड चाहिए सिंगल बॉन्ड चाहिए, अगर तुम्हें यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं चाहिए तो सिंपली डिलीट इट। यहाँ पे अगर तुम्हें डबल बॉन्ड ऐड करनी हो
एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐड करनी हो तो फिर से ऐड करो, नहीं करनी है तो मत करो। ऐसे यू कैन एक्चुअली चेंज द बॉन्ड ऑर्डर टू, जैसे तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर चेंज करनी होती है, हो सकती है, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट। पर एक बात है कि in case of molecule, this is a 2D molecule, right? But Yes, sir. originally are molecules 2D? No. Molecules are not 2D structure, they are 3D structure. That means they actually get out of the plane, right? Yes, sir. They focus out of plane, yeah, or they focus below the plane. So how to incorporate that? We also have a tendency like that over here. See यहाँ पे देखो, ये draw chains के बगल में ही एक option है up stereo bond, down stereo bond. What does this signify? This to signifies the stereoisomerism of your molecule, because generally no molecule is a 2D molecule, every molecule is 3D molecule. They have stereoisomerism and it incorporates that एक molecule की bond तुम्हारा if it is going above the plane or if it is going below the plane. तो यहाँ पे मैं up stereo bond को अगर मैं select किया and suppose I want to make sure that this particular bond is above the plane, so select the bond, up stereo bond करके जिसे select करूंगा वो bond above the plane चला जाएगा, और suppose this is the above the plane bond, suppose this is above the plane, तो accordingly you can change it. अगर तुम्हें कुछ down stereo bond करना हो, so you can also add the down stereo bond over there, like that जिसे तुम्हें down stereo करना हो, simply select that down stereo bond and select the bond that you want to face downward, and it is going to face downward. Similarly you can do that for the up stereo bond also. Clear? Clear. Okay, do it. Okay, now the thing is that पहले चेंज कर लो Yes, तुम. sir. Okay. Done. Done, sir. Okay, तो after you develop a molecule like this, अब ये जो molecule develop कर लिया, then again obviously I'm going to clean the structure to see whether the molecule is okay or not. तो after see अब जो molecule में develop कर लिया, तो RS nomenclature याद है? Yes, sir. हाँ, क्या थी RS nomenclature? RS. अच्छा, give me 1 minute, okay. हाँ बताओ. बताओ. Yes, sir. RS nomenclature प्रायोरिटी देती थी नंबरिंग करने में, जो कायरल कंपाउंड के चारों तरफ जो एटम्स जुड़े हुए होते थे. तो एक मॉलिक्यूल की, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टीरियोआइसोमरिज्म, राइट? तो एक मॉलिक्यूल की Yes. बहुत तरह के आइसोमर तुम फॉर्म कर सकते हो, and sometimes it is essential that some isomers are active molecules, some are not. And एक देखा गया था कि एक समय एक आदमी ने एक कंपनी ने, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ड्रग, बट इन द मिड 90s उन्होंने एक ड्रग को मार्केट पे लाया था, एंड द ड्रग वाज एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल.
वो एक कुछ डिजीज की दवाई थी, तो बहुत अच्छी काम कर रही थी, तो वो लोग ने मार्केट किया, फिर देखा कि वाह, बट वेरी गुड, काम कर दिया, मार्केट कर लिया, क्लिनिकल ट्रायल भी पास हो गया। बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग दे स्टार्टेड सीइंग दैट कि वो मॉलिक्यूल जो है, पीपल आर स्टार्टिंग टू डाई हु आर टेकिंग द मॉलिक्यूल। जो वो दवाई ले रही है, तो वो लोग मर रहे हैं, तो उनको दिमाग खराब हो गया, क्या रे मर कैसे रहे, इतना अच्छा काम कर रहा था। सो दे हैव टू टेक आउट ऑल द ड्रग्स। फिर बाद में पता चला कि the molecule that they worked with in lab was actually the R nomenclatured molecule, while the molecule that they marketed was the S nomenclature. The R nomenclature had beneficial effect against that particular disease, whereas the S nomenclature was the killing one. It was actually a lethal molecule that was killing all the people who were taking it. तो इससे पता चलता है कि RS nomenclature stereoisomerism is really important. Some molecules are active stereoisomerically, while some molecules are not active stereoisomerically. Okay. So the thing is that जब मैंने एक सब मॉलिक्यूल बना लिया, तो मुझे भी देखना होगा ना RS nomenclature कैसे होती है। तो अगर मैं तुम्हें इसकी बनाने कहूँ, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? इसकी RS nomenclature बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तो कैसे करना होगा? तो यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन है R/S। अच्छा, उसके पहले बता दूं, यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन है log p का। व्हाट इज दिस? इफ यू सिंपली क्लिक log p, अच्छा अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अननोन, हाँ। तो देखो यहाँ पे याद है मैं कल log p के बारे में कह रहा था, पार्टीशन कोफिशिएंट। शुभंकर, रिमेंबर द पार्टीशन Yes, कोफिशिएंट? सो व्हाट इज yes, sir. पार्टीशन Yes, sir. कोफिशिएंट? वहां पे था C क्या? log P. या सी Yes, log sir. p, C. वहां पे मतलब क्या था? इफ इट इज C सॉल्युबल और log. नॉट, और उसका रेंज क्या था? Yes, sir. -0.4 to 5.6। Yes, sir. तो अब देखो, मैं अगर मैं यहाँ पे log p क्लिक कर दिया, तो मुझे इस मॉलिक्यूल का log p वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है -2.45, बट एक्चुअली कितना था? व्हाट शुड एक्चुअली बी द log p वैल्यू? -0.4 to 5.6। अरे ये तो -0.4 से बहुत कम है, मतलब द log p वैल्यू दिस मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू गेट solubilized, so you need to change the molecule। मतलब कि मुझे मॉलिक्यूल को चेंज करनी होगी। तो हम कैसे चेंज करें? तो कैसे चेंज करें? तो हमें मॉलिक्यूल को अभी हमें चेंज करनी होगी। सो लाइक सपोज, तो मैं कुछ क्या करता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल को एडिट कर देता हूँ। नाउ सी, अब मॉलिक्यूल को एडिट किया तो इसका -3 हो गया, so it is not working। So like that you actually need to change the molecule to see whether the log p value is fitting properly or not। log p वैल्यू अगर ठीक से प्रॉपरली फिट नहीं होता है, तो उसका मतलब है कि यार मॉलिक्यूल ठीक से काम नहीं करेगी। ओके, सो यू नीड टू Yes, इंक्रीज sir. द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब कैसे करें? सपोज अब नाउ लेट्स चेक द मॉलिक्यूल, इट्स -5.77, so it's not working। मतलब क्या log p इसका ठीक से हुआ नहीं, so you need to add change the molecule so that the log p value remains at a perfect value, because अगर log p value ठीक नहीं हुआ तो it's not going to match the drug likeness, it can't be a medicinal drug। Okay, so there is a option already, a way of log p to, ताकि करते करते तुम obviously you can calculate and see whether the log p is proper or not। Okay, next log p के बाजू में देखो RS nomenclature है। If you simply click that molecule, it is going to check the entire structure and generate all kind of RS nomenclature। तो यहाँ पे देखो it has generated 128 structures। So this is structure 1, this is structure 2, this is structure 3, and you can also zoom in। यहाँ पे देखो zoom out और zoom in का एक ऑप्शन है। तुम स्ट्रक्चर को जूम इन करके कि एक एक स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि कैसा कैसा कहाँ कहाँ चेंज है, कहाँ कहाँ चेंज नहीं है, क्या क्या ऑलरेडी। यहाँ पे देखो चेंज कैसा कैसा चेंज है। यहाँ पे देखो ये है डाउन स्टीरियो बॉन्ड, यहाँ पे देखो Upper studio. अप स्टीरियो है। यहाँ पे देखो कुछ था नहीं, पर यहाँ पे देखो डाउन स्टीरियो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सो लाइक दिस वेरियस काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म हैज बीन डेवलप्ड। ओके, और यहाँ से तुम्हें सिलेक्ट करना होगा द वन दैट यू एक्चुअली वांट टू वर्क विद। Suppose I want to work with this structure 32, then simply click on it and click on insert selected। तो insert selected के बाद यहाँ पे देखो फिर थोड़ा सा मैं नीचे आ गया और मैं यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे
सिलेक्टेड, यहाँ पे पेस्ट कर दिया बिकॉज दिस इज द मॉलिक्यूल दैट आई वांट। तो अब इसका क्या होगा, इसे अब मुझे फिर से डिलीट करना होगा। तो अब इसको पूरा मैं ऐसे सिलेक्ट कर लिया, फिर जस्ट डिलीट कर दिया। So the molecule has been deleted and now you have the isomer that I want. Okay, now do it on your own. सर एक्चुअली मेरा स्ट्रक्चर काफी गिच टाइप हो गया, मतलब क्या मैंने जो बनाया था ना, मेरा स्ट्रक्चर काफी गिच टाइप हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे वो तो अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो। स्ट्रक्चर शुड नॉट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ नॉन टाइपिकल वैलेंस। हाँ तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो ठीक से वो मॉलिक्यूल को ठीक से थोड़ा सा एडिट करना होगा, तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ओके, यस सर, डोंट वरी, मतलब पहले देख लो कैसा कैसा करते हैं, देन यू कैन एक्चुअली डू इट ऑन योर ओन। ओके, यस सर। तो ऐसा देखो आरएस नोमेनक्लेचर करके भी मैं जो नोमेनक्लेचर जो स्टीरियो आइसोमर मुझे चाहिए, देन आई कैन सिंपली सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमरिक मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक दैट। नाउ द थिंग इज दैट जो मॉलिक्यूल मैंने अभी डेवलप की है, इज इट अ नोवेल मॉलिक्यूल? बिकॉज इफ यू वांट टू गो इनटू कैड, तो आई हैव टू डेवलप अ नोवेल मॉलिक्यूल, राइट? क्योंकि अगर नोवेल मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका मुझे क्या फायदा, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर पहले ही किसी ने बना लिया है, तब तो कोई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। Trying to develop a molecule, so how to develop and how to check whether this is a new molecule or not. So just beside this particular thing, there's an option called e molecules. Simply click on this e molecules and then web search. See the e molecules over there, another option is going to come. Web search, say search exact structure and show results in browser, and then simply click OK. So it's going to search the entire thing कि ये मॉलिक्यूल कहीं पे है या नहीं, एंड इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट कि देखो ऐसा मॉलिक्यूल तो कहीं भी नहीं है। अगर कहीं होता तो ये दिखा देता कि हाँ ये मॉलिक्यूल इस कंपनी का भी है, ये लोग भी बनाते हैं, एंड यू कैन बाई इट फ्रॉम देम। तो कैटलॉग नंबर ये है, ऐसा ऐसा करके ये लोग दे देते हैं। एंड इफ इट्स अ नोवेल मॉलिक्यूल दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर गोइंग टू सी दैट यस ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पे है नहीं। So this is a new molecule that you can see. Okay. Similarly, तो उसे सर्च कर लो। अब ये सर्च करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि ताकि तुम पता चल जाए कि ये मॉलिक्यूल अगर पहले किसी ने ऑलरेडी बना के रख दिया है, then of course you can't work with that molecule, right? You can't work with that molecule. You have to think of something else. So that's why it is better to simply click on e molecules and simply check whether the molecule has been developed by someone else or not. And if it is not present over there, then this is the molecule that you can develop. अब इसके बगल में एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे स्माइल्स नोटेशन। व्हाट इज दिस स्माइल नोटेशन? यहाँ पे अगर तुम क्लिक करो तो ये तुम्हारे पूरे मॉलिक्यूल का शॉर्ट हैंड राइटिंग में इसका नाम दे देगा, एंड दिस इज द स्माइल नोटेशन ऑफ योर मॉलिक्यूल। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये स्माइल नोटेशन इज इजियर टू सिंपली सेंड द मॉलिक्यूल टू योर। सपोज तुम्हें अगर सर को दिखाना है कि सर मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, तो सर को अगर तुम ये मॉलिक्यूल सेंड करो तो सर को तुम ऐसे सेंड कैसे करोगे? पिक्चर बना के? पता नहीं चलेगा सर को कैसा होगा। बल्कि तुम अगर ये स्माइल नोटेशन सेंड कर दोगे तो क्या होगा? एनीवन कैन सिंपली रीड्रॉ द स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस स्माइल नोटेशन, बिकॉज दिस स्माइल नोटेशन इज यूनिक टू दिस स्ट्रक्चर, एंड इफ यू चेंज द स्ट्रक्चर द स्माइल नोटेशन इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। सिंपली सी, इफ आई सिंपली डिलीट NH2 तो देखो ये यहाँ पे चेंज हो गया। सपोज मैं यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड कर देता हूँ, तो देखो डबल बॉन्ड कर दिया तो देखो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सो द वे यू एडिट द स्ट्रक्चर, तो स्माइल नोटेशन इज आल्सो गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, और स्माइल नोटेशन की और एक खासियत है, और वो खासियत क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, because smile notation is really important and is required to check the drug likeness parameters and the pharmacokinetic parameters. वो कैसे चेक करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, so this is the important, this is how you generate smile notation. Simply देखो एक ऑप्शन है स्माइल्स नोटेशन, यहाँ पे बेंजीन रिंग हंस रहा है, इसे क्लिक कर दो तो बस स्माइल नोटेशन आ जाएगी।
एंड लास्ट क्लास में तुम्हें दिखाया था, याद है कि स्माइल नोटेशन पैरासिटामोल का, यस सर। तो वो भी है यहाँ पे है। वैसे ही स्माइल नोटेशन, ये स्माइल नोटेशन, दिस इज अ यूनिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग दैट दिस इज रिक्वायर्ड बाय द केमिस्ट। कोई भी केमिस्ट को ये स्माइल नोटेशन भेज दो तो वो स्माइल नोटेशन के ये तुम्हारा मॉलिक्यूल को वो रीड्रॉ कर लेगा कि अच्छा क्या कौन सा मॉलिक्यूल है वो बना लेगा। दे नो हाउ टू डू दैट। ओके, every chemist, every medicinal chemist knows this, and there are softwares that can also compare। ये पढ़ के मतलब केम स्केच भी ये मॉलिक्यूल को, ये स्माइल नोटेशन को पढ़ के ये मॉलिक्यूल को फिर से रीड्रॉ कर सकता है। ओके, another thing is that तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे तुम ऐसे ये मॉलिक्यूल को तुम ड्रॉ कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर थिंग। अभी कभी कभार क्या होता है, यू नीड टू ऐड सर्टेन अदर ग्रुप्स, सर्टेन अदर ग्रुप्स लाइक, यहाँ पे देखो, अब अगेन कम टू दिस पर्टिकुलर द राइट हैंड साइड, यहाँ पे देखो एक ऊपर पीरियोडिक टेबल करके एक ऑप्शन है, नॉट पीरियोडिक टेबल बट द टेबल ऑफ रेडिकल्स। ओके, क्लिक इट। यस। यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें टेबल ऑफ रेडिकल्स दिखेगी। जैसे देखो यहाँ पे साइकिल्स बनी हुई है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, कार्बन ग्रुप्स का विनाइल ग्रुप, ट्राइफ्लूरोमिथाइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप। तो these are the most widely used groups in organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सिंथेटिक केमिस्ट्री में जो मोस्टली वाइडली यूज्ड ग्रुप है यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे नाइट्रो ग्रुप, नाइसोसायनाटो ग्रुप, सायनाटो ग्रुप, फॉर्माइलो। सपोज आई वांट टू ऐड अ फॉर्माइलोक्सी ग्रुप, rather than drawing यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे बनाओ फिर ऐसे बनाओ, आई कैन सिंपली सिलेक्ट फॉर्माइलोक्सी एंड आई कैन सिंपली, जहाँ मुझे ऐड करना होगा मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा तो देखो ऐड हो गया। rather than joining a group over O, फिर से यहाँ पे बॉन्ड बनाओ फिर डबल बॉन्ड बना के O बनाओ, rather than doing that I can simply select यहाँ पे फॉर्मूला से सिलेक्ट करके बस बना दूं तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगी। क्लियर? सिमिलरली यस। याद है मैं पेप्टाइड ड्रग के बारे में कह रहा था, पेप्टाइड ड्रग्स, यस। पेप्टाइड। सो यस। हाउ कैन यू डेवलप पेप्टाइड ड्रग्स? So see, there is amino acids also, so using this amino acid you can also develop peptide drugs। you can simply add amino acid one after another using the peptide bond, और यहाँ से तुम पेप्टाइड मॉलिक्यूल भी तुम डिजाइन कर सकते हो। if you want to design peptide bonds, peptide molecule, you can also do it like that। and these table of radicals are simply there because the most widely used groups are there, so that you don't have to redraw this accordingly। अलग से तुम्हें redraw नहीं करना पड़ेगा, simply select the group and place it over there और बस काम हो जाएगा। doing it like that simply यहाँ से हो जाता है। ठीक है, so this is the table of radical that you can actually use to draw or put in more groups that you want। and obviously at the end simply always clean the structure so that the molecule that you have is always better looking। now the thing is that you actually have to save the structure, right? स्ट्रक्चर तो मैं बना लिया, अब तो मुझे सेव करना होगा। अब सेव कैसे करें? तो फिर से फाइल पे जाओ, देयर आर टू ऑप्शंस ओवर देयर। सिंपली देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किया, नाउ यू कैन सेव द मॉलिक्यूल एज डॉट मॉल फॉर्मेट, और डेस्कटॉप पे जाओ या कहीं भी जाओ, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को ऐसे जब सिंपली जस्ट क्लिक ऑन सेव। ओके, और सेव कर लोगे तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल, तो देखो मैं नो नेम करके सेव किया था तो मॉलिक्यूल आ गई। एंड सिंपली डबल क्लिक दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइमॉल, that particular molecule is going to open up in spymol। तो देखो ये molecule यहाँ पे आ गई। so this is the molecule that I have drawn। okay, so this is यस the सर। molecule that I have drawn। so how to use pymol, और कैसे, ये pymol भी बहुत काम का है तो ये मैं बाद में सिखाऊंगा। but this is how you can export the molecule also। जो molecule तुम बनाए हो वो तुम बना के या अलग से देख सकते हो, घुमा फिरा के कैसे होगा कैसा नहीं होगा, उसका 3D स्ट्रक्चर क्या है ना है, यू कैन सिंपली सी दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर कैन ड्रॉ और पाइमॉल। और तुम इसे जेपेग भी, कभी कभार क्या होता है, दिस इज नॉट ओनली फॉर रिसर्च, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर पब्लिकेशन। अगर तुम्हें पब्लिकेशन करना होगा तभी तो तुम्हें मॉलिक्यूल ड्रॉ करके सेव करना होगा ना, तो दैट यू कैन यस टू सर। डू। सिंपली फिर से फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, और rather than selecting ये सिंपली सिलेक्ट द जेपेग इमेज और टिफ इमेज कोई भी, एंड सिंपली सेव द मॉलिक्यूल। तो फिर से देखो यहाँ पे तो आ ही गया नो नेम जेपेग करके। so see, this is the molecule that you have drawn, and you can then use this particular thing in your publication। and obviously you can change the resolution also यहाँ से
यू कैन चेंज द रिजोल्यूशन, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी। तुम्हें अगर कोई दूसरा कुछ चाहिए, टिफ इमेज चाहिए तो टिफ में सिलेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो। ओके, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस ओवर देयर, यू कैन एक्चुअली हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सर। ये देखो टिफ इमेज आ गया, तो टिफ इमेज आर मोर बेटर देन जेपेग। देखो, this is a much more clearer picture, right? TIFF image are much more better, so you can obviously save it accordingly. And different journals require figures in different formats. Some requires in TIFF, some requires in JPEG. तो जैसे तुम्हें चाहिए, you can simply export the image. सर को दिखाना है, किसी को दिखाना है, so you can actually export and simply select that and show that accordingly. Clear? Clear. So this is how you can use this particular software. Now obviously there are also many more things that you can do, but these are the few things that we require for drug designing purpose, and general thing that we require for drug designing purpose. This is the way, but you can obviously play with the software. सॉफ्टवेयर में और भी बहुत कुछ कर सकते हो, सिंपली खोल लो, काम करते जाओ, Yes. देखते जाओ और क्या क्या कर सकते हो। बट हाँ, ड्रग डिजाइनिंग में और ज्यादातर लगती कुछ है नहीं, पर हाँ, तुम अभी हार्डकोर केमिस्ट्री अगर तुम करते, हार्डकोर सिंथेटिक लैब होते तो इस पे और भी कुछ करना पड़ता, पर हार्डकोर केमिस्ट्री तुम करते नहीं हो, so there are few things that you don't require, but obviously there is no harm in looking for it, so simply play around। अब यहाँ पे खेलो, अब जाके खोल के अब हर देखो क्या होता है, किससे क्या होता है ना होता है। अभी लूज करने की तो कुछ है नहीं, तो सिंपली करो एंड यू कैन सिंपली गेट द ऑप्शंस एंड गेट द आइडिया दैट हाउ टू यूज दिस मॉलिक्यूल एज अ in a much more better format and all। ठीक है? Yes, sir. Okay. Okay, so that's all till today, and in the next class we're going to discuss how to check the फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। मॉलिक्यूल तो बना लिया है, बट इज इट अ गुड मॉलिक्यूल? अब ये तो पता करना होगा ना कि मॉलिक्यूल Yes, अभी sir. ठीक से है या नहीं, मतलब इसका कोई फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी या ड्रग लाइकनेस पैरामीटर्स ठीक ठाक है या नहीं, है तो देखना होगा। सो टू चेक दैट we will talk that about in the next class, in the next week। okay? Yes, sir. Yes, sir. okay, एक छोटी सी चीज सर, हाँ बताओ। किसी भी सिंगल बॉन्ड को डबल कैसे कर सकते हैं, डबल सिंपली बॉन्ड कैसे सिलेक्ट, बना यहाँ सकते पे हैं? कार्बन को सिलेक्ट कर लो, कार्बन को हाँ। सिलेक्ट करो, फिर जो बॉन्ड को तुम्हें चेंज करना हो बस करते जाओ। अच्छा, ओके ओके सर। अब ओके, देखो, थैंक यू सर। एक इजी चीज मैं बता देता हूँ, तुम्हें सिंगल हाँ बॉन्ड को डबल करना हो तो बॉन्ड तो ऑलवेज कार्बन का ही होगा, हाँ हाँ। देन यू सिलेक्ट कार्बन। तुम्हें जो ओ, जिसको जो चेंज करना होगा एटम को उसी तरह से सिलेक्ट करना। इफ यू वांट टू ऐड अ कार्बन चेन देन सिलेक्ट कार्बन टू ऐड अ कार्बन चेन। अगर तुम्हें नाइट्रोजन की चेन बनानी हो तो सिलेक्ट नाइट्रोजन एंड ड्रॉ द चेन। अगर तुम्हें ऑक्सीजन की चेन बनानी हो तो सिलेक्ट ऑक्सीजन एंड ड्रॉ द चेन। यस सर, यस ठीक है? रिमेंबर, यू हैव टू यस। सिलेक्ट द एटम्स, प्रॉपर एटम को सिलेक्ट करके करना होगा, नहीं तो जो एटम सिलेक्ट रहेगा वही एटम यहाँ पे बन जाएगा। दिस इज वन थिंग दैट शुड कीप इन माइंड। ओके, और कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास करने में? मस्त लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। तो आज तक मतलब ऐसे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं मुझे सर, जैसा आप पढ़ा रहे हैं मुझे। अरे नहीं, बहुत ऐसा खुशी तो लग रहा है, कुछ सीख रहा हूँ मैं सर, सही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, एकदम गाड़ी सीखने के अलावा, मतलब सीखने से ज्यादा खुशी किसी में भी नहीं मिलती है। नहीं सर, एक्चुअली हुआ ही नहीं ना, कभी कभी स्कूल कॉलेज मैंने देखा ही नहीं, गया ही नहीं कभी। ओह तो अच्छा। अब नई चीजें सीखने को मिल रही है तो मुझे काफी खुशी लग रही है कि मैं, हाँ और मैंने सर जो भी किया है खुद से किया है, हाँ हाँ वही। खुद से पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की है। हाँ और मेरा घर भी ऐसे गांव में है जहाँ कुछ की सुविधा है नहीं, अच्छा, लेकिन ओके। फिर भी से मेरा मन था पढ़ने का कि मैं पढूं, नहीं नहीं, एकदम एकदम मैं जानूं चीजों को। एकदम एकदम बहुत बढ़िया। बस मन लगा के पढ़ो, देखो ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट वीक को, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, अगर पॉसिबल हो तो इसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दें सर। हाँ हाँ, मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस फर्स्ट क्लास की यस सर। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं करना भूल गया था, तो अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास अच्छा तो अच्छा। कल का तो मैं कर दिया, और आज का भी मैं शेयर कर हाँ दूंगा, सर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सर। श्योर श्योर, थैंक यू सर, प्रणाम। ओके, चलो।